जय गुरुदेव। गुरुदेव, पिछले 29 जनवरी से हमारे आश्रम में 5 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। ये फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत है और भारत रंग महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। इस बार भारत रंग महोत्सव हमारे विशालाक्षी मंडप में हुआ। ये वर्ल्ड फोरम फॉर आर्ट एंड कल्चर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बीच के एमओयू की एक देन है। गुरुदेव, इसी एमओयू के तहत 5 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सेंटर्स, जिसमें एनएसडी दिल्ली, एनएसडी बैंगलोर, एनएसडी सिक्किम, एनएसडी त्रिपुरा और एनएसडी मुंबई में हैप्पीनेस कोर्स हुआ और एनएसडी बॉम्बे में सहज भी हुआ। करीबन 5 दिनों में 5 अलग अलग नाटक खेले गए, जिसमें से 4 नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेपेटरी कंपनी के कलाकारों ने प्रस्तुत किए और एक नाटक राम राज्य कला मेला के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया गया। हम कुछ ही देर में एक्टर्स के द्वारा, इन निर्देशक श्री चितरंजन त्रिपाठी के द्वारा एक डायरेक्टर्स नोट लेंगे क्लोजिंग सेरेमनी का। अब हम मंच पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक श्री चितरंजन त्रिपाठी जी को बुलाना चाहते हैं। उनके साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बेंगलोर सेंटर की निर्देशिका श्रीमती वीना शर्मा जी भी हैं। Gurudev, we have Sri Chittaranjan Tripathi ji with us. He is a distinguished theatre director, actor, and cultural practitioner, and currently the director of National School of Drama, New Delhi. We welcome you, sir, to the International Center. We also have with us Srimati Veena Sharma Bhusnarmadji. She is the director of National School of Drama, Bengaluru Center. She is deeply committed to the theatre education and the strengthening of regional theatre traditions, playing a vital role in emerging talent and expanding the reach of contemporary Indian theatre. We welcome you, ma'am, to the Art of Living International Center. We also have Nisa Kolakle with us, who is the Fame International 24, is a fashion stylist and women empowerment advocate from Nagaland. She has represented India at prestigious global platforms, including Paris Fashion Week and the Cannes Film Festival. Now I'll ask Chittaranjan sir to please tell us more about Bharat Rang Mahotsav. You can come and sit there, please. प्रणाम गुरुदेव, सब लोगों को प्रणाम। This is my second session with Gurudev. It is only his blessings that I have been given this opportunity for the second time. Bharat Rang Mahotsav, for everyone's information, I would like to share certain facts about this festival. It is presently, this is the 25th edition of Bharat Rang Mahotsav. As of today, this is the largest theatre festival in the world, and being Indians, we are very proud of this fact. This year, we are trying to
take this, I mean, we have almost taken this festival to every state, every Indian Union territory, and 12 countries have come to perform. They are coming one by one. And 15 more countries, they are performing in their respective countries. And this year's festival is very, very special in terms of language. 228 languages and dialects are participating. 33 female directors are participating in this festival. Can you imagine it? And that too, not giving any special weightage to their work. So the 90 members jury, only on the basis of sheer merit, they have selected 33 female directors in this festival, which is again the largest in the world. This festival envelopes every genre of theatre, be it children theatre, theatre by senior citizens, youth, whether it is musical theatre or physical theatre, verbal theatre, non-verbal theatre, contemporary theatre, tribal theatre, folk theatre, classical theatre. And also this festival this year is showcasing plays in few lesser known languages like Nishi from Arunachal Pradesh, Sindhi, Maithili, Tulu, and more than that. National School of Drama is just a means. It is just a means that we are doing it, but because it's a national institute, it is everyone's institution, and the theatre lovers and the sheer hard work of all the theatre practitioners from across the country that we could achieve this landmark. And Gurudev, it is your blessings and your kindness that for the first time, National School of Drama is performing in your campus, and it is of it. I mean, this is for the first time that we are performing theatre in a spiritual world. It's completely new. It is beyond even my imagination. When I joined 2 years back, I never thought that I'll be sitting near you. It's a different experience altogether. And we actors, directors, writers, creators, जैसे फिल्मों में होता है इच्छाधारी नाग, वैसे हम लोग सब इच्छाधारी कलाकार होते हैं. कभी डाकू बन जाते हैं, कभी महात्मा बन जाते हैं. कई बार लगता है, जैसे गुरुदेव के सानिध्य में जब मैं बैठा हूँ, कई बार लगता है कि ये तो योगिक क्रिया है, जिसको दुनिया ने इसको ब्लॉकबस्टर, बॉक्स ऑफिस, दिस एंड दैट, क्लामर, उन सब में उसको नापना शुरू कर दिया है. मैं एक छोटी बुद्धि का आदमी यहाँ बैठा हूँ और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है रह रह के. पानी आंखों से बह रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे कंट्रोल से ही बाहर है. यहाँ मैं इच्छाधारी नहीं बन पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों. यहाँ गुरुदेव ही हैं जिनकी इच्छा से सब चल रहा है. ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरुदेव, मैं आपसे कुछ छोटे छोटे जिज्ञासा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ दिस हैपेंड. In this kind of
divine world, theatre has happened, and that to National School of Drama. It's a milestone in itself that in our 66 years history, it is happening for the first time. And if I introspect, I can realize that it is also a yogic kriya. Gurudev, we have started taking help from your institution. Now National School of Drama is being taught Sudarshan Kriya and the basics of Sudarshan Kriya. Because I deeply feel that if I want to be a Ichhadhari actor, I need to know my प्राण and मेरा जो inner self है, जो भी है, मैं आपके सामने क्या बोलूं, तो ये सब हमने शुरू किया है. आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताएं कि how this happened, this festival, and how योगिक क्रिया जिसको हम कहते हैं, how art of living, through art of living, Sudarshan Kriya can help all the creators, not only actors, writers, directors, composers, scientists who believe that it is not art, but there is also some art in science and some science in arts. So, please, आप हमें. बात यह है कि सब नाटक में ही पात्रधारी हैं, बट वो डायरेक्टर को भूल गए. तो डायरेक्टर की इच्छा के अनुकूल करते हैं तो खुश रहते हैं. अपने डायरेक्टर को भूल के कुछ कुछ अपना डायलॉग करने लगते हैं तो chaos हो जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं. समाज में दुखी होने का यही कारण है, डायरेक्टर को भूल गए. और पर्दे में जो पात्रधारी है, पर्दे के पीछे तो सब मित्र है. यहाँ हो सकते हैं वो विलन है, आप हीरो हो, या आप हीरो है, दूसरे विलन है, जैसे भी हो, मगर आपने भूल ही गया कि ये सब एक ही डायरेक्टर का खेल है, और एक ही का वही स्क्रिप्ट डायरेक्टर है, वही डायरेक्टर है, और बात वही दर्शक भी है. इसका वीक्षक प्रेक्षक भी वही है. तो जब ये बात समझ में आती है तो फिर हंसी उठती है जीवन में. ऐसे खुल के हंसने वाली बात जो होती है वो ज्ञान से ही प्राप्त हो गई. भोले भाव मिले रघुराय, हम लोग सुने, जब भोलापन हमारे में है तो उसी से हमारा विकास होता है. नाटक को जब नाटक करते हैं उस वक्त नाटक को वही जीवन समझ के करें तो उसमें काफ़ी असर होता है. जो भी आप पात्र करते वो पात्र आप बन जाना चाहिए. आपने सुना होगा पहले जितने भी लोगों ने कोई श्री राम का, कृष्ण का सब पात्र दिए, वो जीवन में वो शक्ति उतरने के लिए, वो एनर्जी के लिए वो कुछ नियम पालन करते थे. आज भी जो रामलीला होती है तो रामलीला का राम का पात्र रहते हैं, वो कम से कम वो 10-12 दिन तो कुछ अपना नियम से रहते हैं. तो जिस पात्र को भी आप करना हो उसमें घुल मिल जाना. ये वैसे जीवन में सबको नाटक समझना चाहिए, तब जीवन में जीतोगे. नाटक में उसी को जीवन समझोगे तो नाटक सक्सेसफुल हो जाएगा. अब सुदर्शन क्रिया करने से क्या होगा, देखो दुनिया भर के थिएट्रिकल स्कूल में ये सिखाते हैं, नवरस में कोई भी रस को आपको अभिव्यक्त करना हो, कोई भाव जब अभिव्यक्त करना तो ऐसा सांस लो बोलते हैं. जैसे एक सुखद अनुभव के लिए बोलते हैं धीरे से उच्छ्वास, धीरे से सांस लो. और यदि कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति के जोर से सांस छोड़ना होता है
तो गुस्से में अलग तरह के सांस लेना होता है आपको, आपकी सांस से पता चलता है आप में कितना गुस्सा है। ऐसे प्रेम के जो सीन्स होते हैं, जो उसमें एक लव सीन होता है तो उसमें अलग तरह का सांस लेना पड़ता है करके आप लव सीन तो नहीं एग्जिबिट कर सकते। तो आपके मन के हर मूड के हिसाब से सांस का गति भी बदलती है, बदलना चाहिए, बदलती है। वो सांस की गति बदलती है तो आपका मूड भी बदलता है। जीवन में एक क्रिया ध्यान करने से क्या होता है, आपको अंदरूनी मजबूती मिलती है। Artists are usually very sensitive. They have very soft heart and very fluid emotions. And their emotions are sometimes very erratic. So, to have a say over your own emotion. Without emotion, life is very dry, no doubt. But emotions need to be under your control. They cannot overpower you. When emotions overtake you or overpower you, it will be disaster. We have seen this happening. Most of the famous artists around the world are miserable. जितना अधिक श्रेय मिला है वो सब आर्टिस्ट से आप नज़दीक से बात करो, खुश हो नहीं खुश हैं, क्यों? उनको अध्यात्म का गंध भी नहीं रहा। और जिन्होंने अध्यात्म को अपना जीवन में समा लिया, उनके जीवन में बड़ा खुशी आ गई। इसलिए आप खुश रहिए और सबका मनोरंजन करिए। ये एक बड़ी सेवा है, सबको हंसाना, सबके मन को रिझाना, ये अपने में एक कला है और इस कला में आप उतरे हैं। ये कोई कम नहीं है, कोई डॉक्टर से कम नहीं है, वैद्य से कम नहीं है आपका प्रोफेशन। वैद्य जैसे शरीर को बचाता है, आप लोगों के भावनाओं को, मन को बचाते हो, उनको पुष्ट करते हो। इसलिए मगर इसमें आर्टिस्ट में एक बात होती है, जेलसी बहुत होती है। देखो हंस रहे हैं सब पीछे, सबको पता है। जेलसी बहुत होती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, इम्पेशंस बढ़ जाती है। ये तीन होने से फिर जीवन डगमगाने लगता है। क्रिया ध्यान करने से आप थमे रहोगे, आपको एक मजबूत स्तंभ मिल जाएगा जिसके सहारे तुम जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। Gurudev ji, why did you allow us to come here? देखिए ये सबकी जगह है, आप बहुत देर के बाद घर लौट आए हो ये सबका आध्यात्मिक घर है, ठीक है ना। मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ सब मेजबान है, मैं अकेला मेहमान हूँ What next from here? As far as theatre is concerned, and a festival like this, and theatre education, and as you rightly just mentioned, the spiritual side of every artist. So what next? What will be your guidance for all of us? Yeah. You have to reach out to all the artists and take care of their mental health. See that no artist commits suicide. छोटे मोटे आर्टिस्ट नहीं, सबसे बड़े बड़े आर्टिस्ट इस तरह से अपना जानलेवा काम करते हैं, किए हैं। तो इसलिए आर्टिस्ट सबको अध्यात्म के ओर रुझाव होना चाहिए। पहले हमारे रंगमंच अलग से नहीं होता था, मंदिर में ही हुआ करता था। मंदिर में ही एक मंडप होता था, वो रंग मंडप, वहीं पर नृत्य हो, वहाँ पर नाटक हो, सब मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। मतलब जीवन को
दृष्टिकोण से देखते थे। अब हम समझते हैं अध्यात्म अलग है, एंटरटेनमेंट अलग है, व्यापार अलग है, खेल अलग है। इस तरह से हमने अपने जीवन को बंटवारा करके, बांट करके जी रहे हैं। इससे नुकसान काफ़ी हो रहा है। खेल कूद के क्षेत्र में देखो या संगीत नाटक के क्षेत्र में देखो, ये सब जगह ऐसे सिकुड़ते जा रहे हैं। हम अपना व्यक्तित्व का विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आवश्यक है, व्यक्तित्व का विकास हो। दूसरी बात है, एक दूसरे का सहारा बन के रहे। अब देखिए कोई आर्टिस्ट का चेहरा थोड़ा डल है या दुखी है, उनको अकेले नहीं था, आप लोग मित्रता बढ़ाइए, उनके साथ बैठ के बात करें। उनकी जो मन का जो बोझ है उसको उतारने के लिए उसको अध्यात्म में बोले चलो प्राणायाम करो, ध्यान करो, क्रिया करो, इससे लाभ मिलेगा। और दूसरी बात है, जीवन को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना। ठीक है, बहुत कुछ अचीव करके भी आपको करना क्या है? यदि आप बहुत फीवरिश हो जाते हो, आपके भीतर इतना ज्वर से पीड़ित होते हो, तब जरा जाके देखना, जीवन को एक बड़ा दृष्टिकोण से देखो। ठीक है, हो गया, मुझे सब मिल गया, तो क्या है आगे? क्या है? जैसे आपने पूछा ना, आगे क्या है? ये आगे क्या है प्रश्न पूछते रहोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है। मैं तो गुरुदेव, यहाँ हम जो आए हैं, हम पूरे रंगकर्मियों की तरफ से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से, हमारे जो तमाम कलाकार साथी बैठे हैं, हम तो आपके आशीर्वाद लेने आए हैं कि बेहतर रंगकर्म हो, हेल्दी एंटरटेनमेंट हो, एंड सोशली रेलिवेंट एंटरटेनमेंट विच विल एक्चुअली डेवलप आवर माइंड एंड पर्सनालिटी। इसका आशीर्वाद आपसे हम लेने आए हैं इस फेस्टिवल के माध्यम से। देखिए 2006 में जब आर्ट ऑफ लिविंग का 25वां साल गिरा था, तब हमारे मन में ये संकल्प था कि ऐसे विचार आया कि सब आर्टिस्ट जो बडिंग आर्टिस्ट है, जैसे आप जैसे लोग, कोई सेलिब्रिटीज नहीं, बडिंग आर्टिस्ट को एक स्टेज पर बुलाना। तो उस वक्त ये सोचा कि 25,000 आर्टिस्ट सबको बुलाते हैं। तो हमने पहले तो नृत्य करने वालों को बुलाया। एक एक टीचर के पास कुछ 50-100 से ज़्यादा लोग तो नहीं होते हैं। और यदि 10 टीचर एक साथ बोले कि हो ही नहीं सकता, हम सब साथ में नाच ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, ना करके आए। थोड़ी देर बैठे, हमने कहा नहीं आप सोचो थोड़ा सा। फिर गुरुदेव आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। खासतौर से क्लासिकल लोग, 25,000 लोग एक साथ स्टेज में बैठ के गीत गाए, नृत्य करे, ये पहली बार हुआ। उसके बाद फिर दिल्ली में 2016 में जब विश्व सांस्कृतिक महोत्सव किए थे हमने, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, उस वक्त दिल्ली में 36,602 आर्टिस्ट, 7 एकड़ के मंच था, 7 एकड़ के, एक साथ आए, नृत्य किया, गीत गाए। तो ये एक बात है सामूहिक। फिर उसके बाद अभी भारत सरकार ने भी इस बात को उठाया, अभी जगह जगह इस तरह से बड़े समूह में उत्सव मनाते जा रहे हैं। असम में जो हुआ वो देख के हमको बहुत हर्ष हुआ, तो अपना हमारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जैसे लगा। हेमंत विश्वासों ने किया, 10,000 लोग एक साथ नृत्य किए, फिर 400 लोग एक साथ तबला बजाए ग्रंथ साहब के प्रकाश दिवस पर दिल्ली में।
ये एक ट्रेंड शुरू हो गया। इस आश्रम से शुरू हुआ 2006 से, अब जगह जगह ये हो रहा है, बहुत हर्ष की बात है। अब ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ, इस बात को लेके वियतनाम में उन लोगों ने, वो लोग वर्ल्ड कल्चर के, यहाँ तक पाकिस्तान में भी किया उन्होंने। पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, इसी नाम से उन्होंने, लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ वियतनाम और पाकिस्तान में होने पर। लोग सोचने लगे आर्ट ऑफ लिविंग का, फिर उन लोगों को बताया गया नहीं, ये नाम तो हमारा है मगर वो काम वो लोग कर रहे अलग से। कला और क्रीड़ा ये दो क्षेत्र है, व्यापार, ये तीन क्षेत्र लोगों को जोड़ता है दुनिया भर के। मुझे बहुत हर्ष है आप लोगों ने इस चीज़ को हाथ में उठाया, कई देश में इसको ले गए। बहुत पहले करना था मगर अभी कम से कम अभी होना शुरू हो गया, ये मुझे बहुत खुशी की बात है, सबको आनंद की बात है। आपको बधाई है इस बात पर।